Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set is again a Venn diagram based set which I've taken from previous year paper. And the set says there are 50 kids who are member of a local sports club, and all of them play one or more game: football, cricket, and hockey. Among those kids, the number of football player is more than the number of cricket player, which in turn is more than the hockey player. However, the number of kids who play all three games is more than the number of kids who play only football and hockey, which in turn is more than the number of kids who play only hockey and cricket. Among the kids who play exactly two games, the number of kids who play football and cricket combination is the lowest. Number of kids who play only one type of game for each of three games is always less than the number of kids who play all three games. At least one kid can be found for any combination of one or more games. Questions भी पढ़ लेते हैं. Question number one क्या बोला है? What can be the maximum number of kids who play cricket? Question number two कह रहा है what can be the maximum number of kids who play only cricket? Question number three कह रहा है what can be the maximum number of kids who play hockey? Question number four कह रहा है what can be the maximum number of kids who play exactly one game if the number of kids who play only football is more than the number of kids who play only cricket. ठीक है. 3 वेरिएबल का वेन डायग्राम का सेट जो कि मैक्सिमम मिनिमा के सेट पे पूरा मतलब मैक्सिमम मिनिमा के लॉजिक पे जनरली ये सेट बहुत सारे लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो इट इज ऑलवेज एडवाइज नॉट टू ट्राई दिस सेट्स इफ यू हैव नेवर प्रैक्टिस्ड इन द मॉक पेपर आपको नहीं अरे इन दी ऑन द डी डे आपको नहीं करना चाहिए बट सिंस वी आर डूइंग दिस फॉर प्रैक्टिस तो ये अभी हम पढ़ लेते हैं. हमें क्या दिया हुआ है कि 3 अलग-अलग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और 50 लोग हैं और 50 लोग क्या है किसी न किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो जो इनके 3 स्पोर्ट्स हैं वो है फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी. बाहर की वैल्यू है 0. बाहर की वैल्यू 0 का मतलब दे ऑल हैव पार्टिसिपेटेड इन वन और द अदर गेम. ठीक है. फिर आगे कह रहा है अमंग दीज दोस किड्स द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर इज मोर देन द नंबर ऑफ क्रिकेट व्हिच इन टर्न इज मोर देन द हॉकी प्लेयर. ठीक है. इनमें जो है फुटबॉल वाले ज्यादा है किसके कंपैरिजन में क्रिकेट वालों के व्हिच इन टर्न इज मोर देन हॉकी. ऐसा. ठीक है. However, the number of kids who play all three games is more than the number of kids who play only football and hockey. ठीक है. All three game is more than the number of kids who play only hockey and football. यानी कि A is greater than B. ठीक है. Which in turn is more than the number of kids who play hockey and cricket. Hockey and cricket को ले लेते हैं C. Which in turn is more than the number of people who play hockey and cricket. ठीक है जी. अमंग द किड्स हु प्ले एग्जैक्टली टू गेम यानी कि ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट की बोल रहा है कि ए बी सी में से द नंबर ऑफ किड्स हु प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट कॉम्बिनेशन इज द लोवेस्ट. इन तीनों में जो ये पार्ट है डी की वैल्यू सबसे लोवेस्ट होने वाली है यानी कि ये कुछ ऐसा होने वाला है. तो हमें ये पार्ट मिल गया कि ए इज ग्रेटर देन बी सी डी. ठीक. एक पॉइंट अपने को यहाँ से हमने डिराइव कर लिया. अच्छा और पढ़ते हैं. अमंग द किड्स हु प्ले एग्जैक्टली टू गेम्स the number of kids who play football and cricket combination is the lowest. Number of kids who play only one type of game for each of these sports is always less than the number of kids who play all three games. यानी कि यहाँ पे ले लेते हैं x, ये ले लेते हैं y और ये ले लेते हैं z. ठीक है. ये तीनों को ले लेते हैं only वाले. ठीक है. Number of kids who play only one type of game for each of these game is always less than the number of kids who play all three game. यानी कि ये हमेशा कम होने वाला है all three वाले से. यानी कि a is always greater than x, a is always greater than y, a is always greater than z. ठीक है. At least one kid can be found for any combination of one or more game. यानी कि ये जो जितने वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू में जो वैल्यू है वो 1 या 1 से ज्यादा होने वाला है. या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि a b c d x y और z की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती. ऐसा ये कहना चाह रहा है. ठीक. अब क्या करा जाए क्वेश्चन के अंदर क्या ही चीज़ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ और बस क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम तुमसे पूछते जा रहा है. ठीक है. अपने पास क्या हिंट है? अपने पास एक हिंट है कि भैया इनका जो सम है वो 50 हो जाता है. दूसरी हिंट है कि ये वाला पार्ट कि फुटबॉल इज़ ग्रेटर देन क्रिकेट व्हिच इज़ इन टर्न ग्रेटर देन हॉकी. ठीक है. तो इनकी कुछ मदद ली जाए. इनके हेल्प से कुछ मिल पाए अगर अपने को तो उस पे दिमाग लगाते हैं. ठीक. तो फुटबॉल इज़ ग्रेटर देन क्रिकेट यानी कि फुटबॉल वाला जो है वैल्यू ग्रेटर देन क्रिकेट. यानी कि इनमें ये कॉमन है तो x प्लस बी इज़ ग्रेटर देन y प्लस सी. x प्लस बी इज़ ग्रेटर देन y प्लस सी. ठीक है जी. अच्छा एक इक्वेशन. फिर कह रहा है कि क्रिकेट इज़ ग्रेटर देन हॉकी. क्रिकेट इज़ ग्रेटर देन हॉकी यानी कि y प्लस d इज़ ग्रेटर देन
बी प्लस जेड, ठीक, ऐसा। और अपने को ये भी पता है कि फुटबॉल इज ग्रेटर देन हॉकी, यानी कि फुटबॉल इज ग्रेटर देन हॉकी, यानी कि एक्स प्लस डी, क्योंकि देखो फुटबॉल इज ग्रेटर देन हॉकी, यहाँ पे ये कॉमन है ना, तो ये वाला सम इज ग्रेटर देन सी प्लस जेड। ये 3 इक्वेशन अपने को यहाँ मिल गए। इनसे कुछ निकाल सकते हैं क्या? इनको हम यहाँ से कुछ निकाल पाएँगे? देखो, बी इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन सी, तो वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग अबाउट एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस बी एंड वाई प्लस सी कुछ भी हो सकता है। मतलब देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर बराबर। सिंस बी इज़ मोर एंड सी इज़ लेस, तो ओवरऑल सम भी बराबर आ जाए, अरे बड़ा आ जाएगा, तो एक बन सकता है। देयर कुड आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी वेयर एक्स इज़ लेस देन वाई, बट बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो उधर वो सब बराबर हो सकता है। मतलब लेट्स से एक्स 2 है, ये 3 है, बट ये 5 है, ये 1 है। तो कुछ ऐसा सॉर्ट ऑफ बन सकता है। ठीक है, y प्लस डी इज ग्रेटर देन बी प्लस जेड, वाई प्लस डी। अब देखो यहाँ पे ये मिल सकता है, सिंस डी इज लेस देन सी, ठीक है, एंड बी, देखो यहाँ पे ना, डी इज लेस देन बी एंड सी, यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी कि इस केस में y हैज टू बी ग्रेटर देन z। y को z से बड़ा होना ही पड़ेगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल कि y प्लस डी इज ग्रेटर देन बी प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भैया d इज स्मॉलर देन b। अच्छा, x प्लस डी इज सी प्लस जेड, ठीक? सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कह पाऊँगा, देखो डी यहाँ पे दिख रहा है छोटा है और बी बड़ा है, सी बड़ा है, ठीक है? उस केस में एक्स को बड़ा होना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन सेट हो पाएगा, यानी कि एक्स इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन जेड। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ए सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद एक्स कॉमा वाई है, व्हिच इज़ ऐसा, ठीक? ऑल्सो वी कैन से कि भैया ए और डी का जो गैप है वो कम से कम 3 का होने वाला है, मतलब बेयर मिनिमम 3 का होगा, ऐसा 1, 2, 3 और इधर 4, ऐसा। या बी और डी का गैप कम से कम 3 का होना 2 का होना चाहिए, या सी और डी का गैप कम से कम 1 का होना चाहिए, बिकॉज़ वो दिख रहा है इनइक्वालिटी वाले सिंबल में, ठीक है? लास्ट एक अपने पास हिंट और बची, उसको भी लिख लेते हैं। वो हिंट क्या बची हुई है, वो कह रहा है कि भैया एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू व्हाट? 50। एक तो अपने को ये हिंट दे रखी थी, ठीक है? अब इनकी मदद लेके अपने को कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, मतलब जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है तुम्हें वो निकालना पड़ेगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये मेरा प्री वर्क था जो मैं क्वेश्चन पे कूदने से पहले कर पाया। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ किड्स हू प्ले क्रिकेट, यानी कि इसको मैक्सिमाइज करना है। यार इसमें ध्यान दो ना, इसमें मैक्सिमाइज करने का मतलब ये वाली पूरी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना और इन तीनों को मिनिमाइज करना है। ठीक है, यानी एक्स पी जेड को मिनिमाइज करना। जेड को तो 1 लेके काम कर सकता हूँ, बिकॉज़ जेड कैन बी 1। ठीक है, जेड का तो अपन निपटा सकते हैं कि जेड को 1 ले लेता हूँ। ठीक, अच्छा, बी को मिनिमम कितना ले सकता हूँ? बी को मिनिमम लेने का मतलब कैन आई टेक बी एज़ अ 1? नहीं। कैन आई टेक बी एज़ अ 2? नहीं, क्योंकि अगर 2 लूँगा तो डी को 0 लेना पड़ेगा। कैन आई टेक बी एज़ अ 3? पॉसिबली यस, तो 3, 2, 1 दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू आई कैन टेक फॉर बी। ठीक है? तो बी का 3 लेना पड़ेगा, फिर सी का 2 लेना पड़ेगा और डी का 1 लेना पड़ेगा। ठीक? तो यहाँ से अपने को ये वैल्यू मिल गई बी, सी, डी की 6। ये मिल गया 6। ठीक? आई होप इट इज़ क्लियर। अपने को ये वाला वैल्यू मिनिमाइज़ करना था ना, ये समझना। ये मिनिमाइज़ कब होगा? जब आप ये वाली इनइक्वालिटी पे ध्यान देना ना। ये 0 नहीं ले सकता, ये तो पता है। 1 लूँगा तो इसको क्या दूँगा, 2 लूँगा तो क्या दूँगा, 3 लूँगा तो ही दे पाऊँगा कुछ ना कुछ वैल्यूज़। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या बच रहा है, एक्स, वाई, ज़ेड, जिसमें से ज़ेड की भी वैल्यू अपने को 1 दे रखी है। अपने पास अभी भी ए का बचा हुआ है, ए का कुछ करना पड़ेगा। ए को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो यही पार्ट है ना, इधर इधर अपने को करना है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या ले सकता हूँ? एक्स और वाई कैसे ले सकता हूँ? एक्स और वाई की मिनिमम वैल्यू क्या बन सकती है? जैसे इनके में से किसी की मदद लेते हैं ना। अपने पास क्या दिया हुआ है एक्स और वाई के लिए, ये देखना। वाई प्लस डी या एक्स प्लस डी सी प्लस जेड, ठीक है? तो लेट्स चेक फॉर दिस वाई प्लस डी एंड बी प्लस जेड, या पहले इन दोनों का लेते फिर इन दोनों का ले लेते ना, ठीक है? तो अपने पास क्या था, वाई का क्या लेना था, वाई प्लस डी। वाई प्लस डी बोले तो 3, ठीक है? सॉरी, वाई प्लस डी इज़ वाई प्लस 1 इज़ मोर देन बी प्लस जेड, यानी कि बी प्लस जेड इज़ 3 प्लस 1 4, ठीक है? तो y की वैल्यू को कम से कम क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा? नहीं, 3 लेना पड़ेगा इनफैक्ट, है ना? हाँ, 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 एक बार फिर से सोच लेते हैं। व्हाई टू टेक दिस, ये इसको छोड़ने से अच्छा ना x की वैल्यू पे दिमाग लगाते हैं। क्योंकि अपने को ये तो पूरा सम दिया हुआ है ना, अपन x की दिमाग लगाते हैं तो काम बन जाएगा। बट x वाले में पंगा क्या है कि यार ये इक्वेशन भी है ना, बिकॉज़ b एंड c का काम है, तो b इज़ 3, c इज़ 2, x का अगर बराबर भी रख लूँगा तो c चल सकता है। ठीक है, इधर से y की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ सेफ साइड के लिए। y प्लस z इज़ ग्रेटर देन b प्लस z।
तो बी की वैल्यू क्या लिया था मैंने 3, ज़ेड की वैल्यू मैंने ली थी 1, यानी कि अ, वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे बेयर मिनिमम क्या ले सकता हूँ? जब सब कुछ मिनिमम-मिनिमम चला रहा हूँ, तो वाई की वैल्यू क्या ले सकता हूँ? वाई प्लस डी, और ये कितना था? बी प्लस ज़ेड। बी प्लस ज़ेड कितना लिया था? बी वाज़ 3, ज़ेड था 1, 4, यानी कि 4 से बड़ा 5, 6 कुछ भी हो सकता है, 5 ही लेना पड़ेगा। तो डी की वैल्यू को मैंने 1 ले रखा है, तो यानी कि वाई की वैल्यू को 4 लेना पड़ेगा, ठीक? अगर मैं वाई की वैल्यू को 4 ले लेता हूँ, ठीक? उस केस में व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स प्लस बी, वाई प्लस सी। एक्स प्लस बी, वाई प्लस सी। वाई कितना है? 4 है, ठीक है? सी कितना है? 2 है, 6, यानी कि इट हैज़ टू बी 7। 7 के लिए बी का क्या है? 3 है, यानी कि एक्स की वैल्यू को मैं मिनिमम क्या ले सकता हूँ? 4 ले सकता हूँ, ठीक है? नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन आई कैन फिगर आउट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है? नाउ ए वाज़ द एंकर पार्ट, यही बंदा है जिसको तुम निपटा सकते थे मैक्सिमाइज़ करके ताकि ओवरऑल वैल्यू को दे पाए। तो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ ए? इधर से निकाल देंगे तो 6, 4, 4, 1, यानी कि 4, 4 अ, या तो अपने को क्या चाहिए ए प्लस बी प्लस ऐसा ही तो चाहिए ना, ए प्लस या इनको माइनस कर लो ना तो भी तो बन जाएगा, एक्स पी जेड को वाई माइनस कर दो। एक्स कितना है? 4 है, ठीक है? एक्स को 50 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना? 50 माइनस 4 माइनस बी मैंने कितना लिया था? 3, और जेड को ले लूँगा 1, तो यानी कि 50 माइनस 8, यानी आंसर क्या आना चाहिए? 42। ऑप्शन नंबर सी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। टफ क्वेश्चन, अगर तुमने कभी भी ये सब सॉल्व नहीं कर रखा है ना, तो पेपर वाले में प्यार से इसको नमस्ते करना और आगे बढ़ जाना। मतलब तुम इसमें कूदे और तुम्हारा गया पेपर। मतलब तुम्हारा सीधे कैट 26 आ जाएगा, ठीक है? सो एडवाइस ये है कि ये क्वेश्चन पेपर वाले दिन नमस्ते कर लेना, ठीक है? अगर तुमने कभी भी ये सब चीज़ें नहीं सॉल्व कर रखी, ठीक? चलो, लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसको हटा लेते हैं, ठीक? इसको भी हटा लेते हैं बिकॉज़ ये तो मैंने इधर से मैक्सिमाइज़, उधर से मिनिमाइज़ और ये सब कहानी ले लेके करा था, ठीक? चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा हुआ है उधर दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ किड्स हू प्ले ओनली क्रिकेट। अच्छा, फिर से वही मेरे को ओनली क्रिकेट पे, यानी कि वाई की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक? वाई की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना है। तो यार वाई की वैल्यू मैक्सिमाइज़ कब होगी? जब बाकी सब की वैल्यू मिनिमाइज़ होंगी। अब प्रॉब्लम क्या है, बाकी सब में क्या है, ए की वैल्यू हैज़ टू बी ग्रेटर देन वाई, ये ध्यान देना ना, ए की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन वाई। तो कुछ भी करूँगा तो यार ये वाले को तो अपने को करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले जो अपने पास मिनिमाइज़ करने का था वो इन्हीं तीनों का था। सीडीबी पहले इनको निपटाते हैं, क्योंकि यही तीनों हैं जो बाद में मदद भी करेंगे। तो इनको ले लो तुम, ऐसा बीसीडी को फिर से 6 ले लो, कि बी की 3 ले लिया, सी की 2 ले लिया एंड डी को 1 ले लिया, ठीक। यूजिंग दीज़ 3 कुछ निपटा देते हैं, ज़ेड को भी 1 ले लो, लगे हाथ, क्योंकि अपने को ये बाकी सबको मिनिमाइज़ करना था, ठीक है? जैसे हमने पीछे देखा था ना वो बात सेट हो पा रही थी। ज़ेड को भी ले लो 1, ठीक है? नाउ आई नीड टू चेक एज़ एक्स, ए एंड वाई, इनका देखना पड़ेगा। एक्स का मैं क्या कर सकता हूँ, वाई का क्या कर सकता हूँ और इनका क्या कर सकता हूँ, ठीक है? एक्स के लिए दिमाग लगाते हैं, ठीक है? एक्स का क्या होने वाला है, सॉरी, एक्स का क्या होने वाला है अपने पास, अपने को पता है कि एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर देन वाई प्लस सी, ठीक है? अब क्योंकि ये है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 का ही आ रहा है, मैंने लिया हुआ ना, तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ फॉर दिस क्वेश्चन कि एक्स प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन वाई, मतलब ऐसा कुछ ये होने वाला है, ठीक है? एंड इट हैज़ टू बी लेस, और ए को भी कम होना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यानी कि 2 चीज़ें हैं जिसमें इससे बड़ी आ सकती हैं, ठीक है? अच्छा, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। मतलब देखो मैंने ये यहाँ से निकाला ना ये वाले पार्ट से, क्योंकि अपने को दिख रहा था एक्स प्लस बी और वाई प्लस सी, तो एक्स प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन वाई, ठीक है? वाई की वैल्यू को अगर अपन 10 ले रहे हैं तो ये वाली वैल्यू को 15 जैसा कुछ बना के करना पड़ेगा, ठीक है? ऑप्शन से ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। अभी मेरे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस ज़ेड प्लस ए, ठीक है? तो मेरे पास एक्स, वाई और ए को छोड़ के बाकी सबको हटा दो, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस ए इज़ इक्वल्स टू नथिंग बट 43, ये कह सकता हूँ। ये कैसे आया? यहाँ से ये ज़ेड को 1 ले लिया था, ठीक है? ठीक? व्हिच वाज़ इक्वल्स टू 50, तो ये 7 आके इधर आ गया। अब ज़रा-सा ध्यान दिया जाए, क्या कर सकते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस ए इज़ इक्वल टू 43। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर? ऑप्शन से करें? सबसे मस्त। ऑप्शन क्या मैं 16 ले सकता हूँ क्या? आप समझना, अगर मैं 16 लूँगा, ठीक है?
यानी कि इसको 16 से ज़्यादा होना पड़ेगा, तो 16 से ज़्यादा मतलब 17 होना पड़ेगा, ऐसा? ठीक है, 17 होने का मतलब x कैन बी सम 16 ऑल्सो, ठीक? अगर x भी 16 ये भी 16 तो यानी कि 32 यानी कि a की वैल्यू को कुछ तो घटिया सा ही लेना पड़ेगा, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक? कैन आई गो फॉर 15? अगर मैं 15 लेता हूँ, तो यानी कि ये जो वैल्यू है 16 आनी चाहिए, ये वाली वैल्यू, मिनिमम, ठीक है? अगर ये यानी कि x की वैल्यू 15 होनी चाहिए, यानी कि 15, 15, 30 और ये क्या होना चाहिए 13, ये भी नहीं बन सकता। ठीक, 14 कैन आई टेक 14? अगर मैं ये 14 लेता हूँ यानी कि x की वैल्यू को भी मैं 14 ले सकता हूँ, तो 14 और 14 18 a कैन बी 15 बिंगो यहाँ पे आपका आंसर बन सकता है। यानी कि x की वैल्यू को मैं 14 ले लूँ, y की वैल्यू को 14 ले लूँ, ठीक है? एंड a की वैल्यू ले लूँ 15। देखो यहाँ पे ये पूरी कहानी सेट हो जाएगी बिकॉज़ देखो x की वैल्यू को यही पे था ना 14 प्लस समथिंग एंड 14 प्लस समथिंग। ऐसा नहीं बोला था कि x इज़ ग्रेटर देन y, ये तो नहीं बोला था ना, बोला था x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है? तो यही था ना कि x प्लस 1 करना था, तो 14 प्लस 1 15 इज़ ग्रेटर देन y फ ये बन गया और ये तुम्हारा आंसर बन गया। अब मैंने क्यों ऑप्शन से करा, जैसे यू में आज की सर 13 भी तो आंसर है, भाई मेरे को मैक्सिमम पूछा है ये ध्यान देना, तो मैंने ऑप्शन से ही कहानी करी, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जगह बना लेते हैं साथ-साथ में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ किड्स हू प्ले हॉकी? अच्छा, ये वाले नंबर को मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है? हॉकी वाले नंबर मैक्सिमम कितने होंगे? ये दिमाग लगाना है। हॉकी वाले नंबर मैक्सिमम होने का मतलब ज़ेड की वैल्यू को मैक्सिमम करना पड़ेगा? नहीं, ए की वैल्यू को मैक्सिमम करना पड़ेगा। ये समझना, ज़ेड की वैल्यू को मैक्सिमम करोगे तो तुम्हें पता है ज़ेड जितना बड़ा होगा उससे ज़्यादा बड़ा एक्स और वाई आएगा और उससे बड़ा ए आएगा। तो मतलब तुमको ये वाली वैल्यू को बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है? ये करो और इनको जितना हो सके उतना नीचे रखो, ठीक? इनको तो सबसे नीचे रखने का एक ही तरीका है कि आप ये वैल्यू ले लो। ये जो बी, सी, डी और ये वाली, ये पूरी वैल्यू चलेगी। इनको तो यही रख लेते हैं, ठीक है? कि यहीं से अपना काम हो जाएगा कि 3, 2, 1 ऐसा कर लेते हैं, ठीक? अच्छा, अब क्या करा जाए? अगर 3, 2, 1 निकल गया अपना, अब आप कहोगे सर यार ए की वैल्यू को वही रखो ना, काम खत्म करते हैं, ठीक है? ए की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करने के लिए वो कर सकते थे। अब इफ यू वांट यू कैन यूज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा क्योंकि वहाँ पे ए को मैंने मैक्सिमम ले रखा था, तो वहाँ पे आपको क्या आया था 42 आया था, इन सबका मिला के, ठीक है? जहाँ पे ए प्लस ए का आई थिंक हमने यहाँ पे निकाला था ना? चलो मैं फिर से निकाल देता हूँ। क्या था हमारा? ए का ऑप्शन वाज़ 42 तो यहाँ से मैं निकाला ना ए का 50 था और 431 था, ठीक है? जो कि हमने इन तीनों से माइनस कर दिया था। अच्छा इसलिए मेरे को अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को ये तीनों को माइनस करना है, ठीक है? ये तीनों को माइनस करने का मतलब मैंने एक तो ये 4 लिया हुआ था, ये याद है मेरे को। एक क्वेश्चन नंबर 1 पे ही ना, बिकॉज़ ये मैक्सिमाइज़ कर रखा था। ये तो मैंने 4 ले रखा था, ठीक है? ये मैंने 3 अ, ये मेरा 3 था, ठीक है? ये मेरा 4 था, तो यानी कि 50 माइनस इसके लिए ले लेते हैं, 50 माइनस 4 माइनस डी की वैल्यू कितनी थी मेरी? 1 थी, ये तो मेरे को पता है। एंड यहीं से सॉल्व कर लेते हैं ना, x प्लस बी और y प्लस सी कितना होगा? x की वैल्यू थी 4 और b की वैल्यू कितनी है? 7 ठीक है जी? यानी कि 7 यानी कि यहाँ पे क्या होना था? c प्लस z ऐसा था? नहीं सॉरी y प्लस सी ये कितना था? y प्लस सी मैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने मेहनत करी थी उसी को मैं बस आगे बढ़ा रहा हूँ ना, c प्लस y ठीक है? तो यहाँ पे मैंने c की वैल्यू क्या ले रखी है? 2 ले रखी है, यानी कि 4 प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 2 प्लस y ठीक है? तो y की क्या वैल्यू बन सकती है? 4 3 7 7 2 7 और y की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा? 4 3 7 7 2 7 ना, तो 2 यानी कि y की वैल्यू को मेरे को 4 लेना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा ही है ना 4 2 6 है ना? यही तो बनेगा y की वैल्यू 4 लेना पड़ेगा। तो यही था, पीछे जाके तुम वाला कॉन्टेक्स्ट देख लेना ना वो मिल जाएगा। तो यानी कि -4 करना पड़ेगा, यानी कितना बन गया 4 4 8 1 9 यानी कि 50 माइनस 9 यानी कि 41 ऑप्शन नंबर ए हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है? ये वाली कैलकुलेशन के लिए तुम पीछे कर लेना वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे पूरी मेहनत कर रखी थी, बस मैंने उसी वैल्यू को रेप्लिकेट कर दिया यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे मेरा y निकल रखा है ना। अब y मैंने यहाँ पे 4 ही लिया, ये ध्यान देना। 4 ही क्यों लिया है? व्हाई नॉट 3, व्हाई नॉट 2, वो तुमको वहाँ पे दिखाई देगा, या तुमको चलो यहाँ पे बता देता हूँ ना। बिकॉज़ इट वाज़ लाइक एक इक्वेशन ये भी था ना कि y प्लस डी एंड दिस b प्लस z, यहाँ से मैंने y की वैल्यू को निकाल रखा था। y की वैल्यू कितनी थी? y प्लस d, यानी कि y प्लस d वाज़ कितना? 1 इज़ ग्रेटर देन b प्लस z। b कितना था? 3 प्लस z बोले तो 1, यानी कि y की वैल्यू कम से कम मेरे को 4 लेनी ही पड़ेगी। ठीक, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक? ये वैसे क्वेश्चन नंबर 1 जब मैंने इसमें पीछे देख लेना, ठीक है? तो यहाँ से आंसर मिल गया अगेन 41। फिर भी लेकिन ध्यान देना ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ किड्स हू प्ले एक्जेक्टली 1 गेम इफ द नंबर ऑफ किड्स हू प्ले ओनली फुटबॉल इज़ मोर देन द नंबर ऑफ किड्स हू प्ले ओनली क्रिकेट। ठीक है? चलो, इसको लिए कलर कोड अलग बता देता हूँ ताकि तुम्हें ये दिखाई दे जाए। फिर से पढ़े तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ किड्स हू प्ले क्रिकेट एक्जेक्टली 1 गेम। अपने को एक्स, वाई, ज़ेड का सम पूछा हुआ है। ठीक है? एक्स, वाई, ज़ेड का सम मतलब कहीं पे यार जगह बनानी पड़ेगी अपने को, तब जाके बात बनेगी। हुँ। क्या पूछा हुआ है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ किड्स हू प्ले एक्जेक्टली 1 गेम इफ द नंबर ऑफ किड्स हू प्ले ओनली फुटबॉल इज़ मोर देन द नंबर ऑफ किड्स हू प्ले ओनली क्रिकेट। एक्स प्लस वाई प्लस ज़ेड का आपको नंबर पूछा है। जिसमें से ये कह दिया है कि इफ इट इज़ नोन दैट ओनली फुटबॉल वाले का इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ किड्स हू प्ले ओनली क्रिकेट। इक्वेशन में ये कह दिया कि x इज़ ग्रेटर देन y एंड सिंस इट इज़ ग्रेटर देन z, तो ये भी पता है, यानी कि x, y, z ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है? और अपने को ये भी पता है कि भैया इनमें a सबसे बड़ा होता है। तो यानी कि ये ध्यान दो, तो ये वाली चीज़ अपने को है कि a इज़ ग्रेटर देन x व्हिच इज़ इन टर्न ग्रेटर देन y व्हिच इज़ इन टर्न ग्रेटर देन z। ठीक? अब इन चारों को मैक्सिमाइज़ कब करेंगे? जब बाकी जो बचे हुए ये लोग भाई लोग हैं, इन सबको मिनिमाइज़ करेंगे। इनको मिनिमाइज़ करने का कब होगा? जब ये मिलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यानी कि a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हैज़ टू बी 44। ठीक है? यानी कि इस वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे देखो मैं लिख लेता हूँ, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हैज़ टू बी 44। ये कहाँ से आया? ये इनको निपटा के आ रहा है, ये ध्यान देना। ये जो बार-बार मैं ये बी-सी-डी को मैंने ले रखा है ना, 3, 2 और 1, इसी पे बार-बार काम करते जा रहा हूँ। ठीक है? ये क्या है? 44 है इनका। अच्छा, जिसमें से ये पता है कि ये इक्वेशन भी दिया हुआ है कि a इज़ ग्रेटर देन x व्हिच इज़ इन टर्न ग्रेटर देन y व्हिच इज़ इन टर्न ग्रेटर देन z। तो ये थोड़ा इस पे भी ध्यान दिया जाए। तो क्या करा जाए? इसका एक तरीका ऑप्शन से ही है। ठीक है? सबसे बेस्ट तरीका है। क्या x, y, z का सम मैं 27 ले सकता हूँ? और मेरे को क्या पूछा, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर? अब ये समझना, मैक्सिमम में कैन आई टेक 32? ये समझते हैं। इफ आई गो फॉर 32 मतलब a हैज़ टू बी 12। ठीक है? अगर a 12 है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट वैल्यू ऑफ x, y, z? अगर मैं a इसमें लेता हूँ ना, इस वाले ऑप्शन से जाता हूँ। इफ आई गो फॉर a की वैल्यू 32, सॉरी हाँ, a नहीं, इनकी वैल्यू a 32 है ना? 1 मिनट ना, को हटा देता हूँ, ताकि अपने पास जगह रहे। हाँ, अगर मैं ले लेता हूँ कि भाई ये 32 ऑप्शन है, तो यानी कि इस केस में a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर ये 32 है, तो a की वैल्यू होनी चाहिए 12। और बेस्ट वैल्यू x, y, z की क्या हो सकती है इससे कम? 11, 10 और 9। 11, 10 और 9, क्या ये मिला के 32 ये बना रहे हैं 44? नहीं, ये क्या बना रहे हैं? 12, 11, 10 और 9, यानी कि ये बना दे रहे हैं आपको 42। तो ऑप्शन आपका ये गड़बड़ हो गया। आई कैन नॉट टेक ऑप्शन एट दिस पॉइंट। ठीक है? 11, 10, 30, 40, 42, ठीक है? यानी कि मेरे को बनाना कितना था 44, और ये कितना बनाना है 42। आई कैन नॉट टेक दिस ऑप्शन। अच्छा, 31 पे चेक करता हूँ। इफ आई गो फॉर 31, 31 का मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 31, 44 माइनस 31, यानी कि a की वैल्यू 13 होनी चाहिए। ठीक है? उस केस में x की वैल्यू क्या हो सकती है? 12, y की वैल्यू क्या हो सकती है? 11 और z की वैल्यू क्या हो सकती है? 10। ये तीनों बना देंगे। देखो 10 और 11 21, 21 और 10, 13, 11 और 12।
है ना? हाँ, ठीक है। आई थिंक कुछ गलत करा। एक्स, वाई, ज़ेड की वैल्यू क्या बना सकते हैं? 13, हाँ। 13, 12, 11 और 10 यानी कि 13, 13 और 12 25, 25 और 11 26 और सॉरी 36 और 46 यानी कि इसकी एडजस्टमेंट मैं कर सकता हूँ, ये बना सकता हूँ 31। ठीक, 31 कैसे बना सकता हूँ? आई कैन टेक क्योंकि पीछे क्या बच रहा है ना मेरे पास देखना समझना, मेरे पास अगर मैं 13 हटा देता हूँ तो 31 बनाना है, तो आई कैन टेक दिस एज़ 11, 10 या 12, 10 और 9 ऐसा बना सकता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा 12, 10 और 9 यानी कि ये मेरा पॉसिबल है, यानी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 31। 32 इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं बेस्ट नंबर भी लेता हूँ ना इनके, तो वो 42 बना रहे हैं, मेरे को 31 तक 44 बनाना था, व्हेयर एज़ मैंने जब 31 लिया तो मेरा ये आंसर मेरा बन जा रहा है, ये एडजस्टमेंट हो पा रही है, ठीक है? आई वुड रेट दिस एज़ अ मॉडरेट से डिफिकल्ट सेट, खासकर उन बच्चों के लिए ये सी कैटेगरी सेट है, इफ समवन हैज़ नेवर ट्राइड मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन और पेपर वाले फेज़ में छोटा सेट दे के मत कूद जाना, नहीं तो तुम वहीं पे फँसे रह जाओगे, ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।